Good morning to all of you. Today we will see about the polynomial chapter, that is chapter number 2, polynomial. Okay. So first one, what is meant by polynomial? Means the word polynomial. Here we can write polynomial. Polynomial. Okay. This word which contains two types of word. This one poly and this one nomial. Okay. So poly means many. Poly means many and nomial means terms. Nomial means terms. Okay. So polynomial means many terms. Okay. And we know that the general syntax of the polynomial. Here we can write like that. P of x means this polynomial in the form of x. So P of x is equal to a1 x raised to n, then plus a2 x raised to n minus 1, then second a3 x raised to n minus 2 up to last, that is plus an. Okay, this is an, and finally we get here that is x raised to n minus n. Okay, but we know that n minus n is 0 and x raised to 0 means here that is 1. So we get here only an. So this is the general syntax of polynomial. P of x is equal to a1 x raised to n and plus a2 x raised to n minus 1 plus a3 x raised to n minus 2 up to dash plus an. Okay, this polynomial in the variable of x. Okay, so next concept, types of polynomial. Next concept, types of polynomial. Types of polynomial. Types of polynomial. Okay, so we know that mainly three types of polynomial. Mainly three types of polynomial. Here first we can write here, that is linear polynomial. Linear polynomial. Second, quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Next, that is cubic polynomial. Cubic polynomial. Cubic polynomial. Okay, and first one, that is linear polynomial. Yes, first one, what is meant by linear polynomial? The linear polynomial which have the highest power of that variable is 1. What is meant by linear polynomial? The highest power of that variable is 1 is called as linear polynomial. General syntax for linear polynomial, here we can write like that, that is P of x, the polynomial in the form of x, P of x is equal to ax plus b. P of x is equal to ax plus b, but a is not equal to 0. But a is not equal to 0. So this is the syntax of the general form of the linear polynomial. Okay, so power of this variable is 1, so it is called as linear polynomial, same like as linear equation. Okay, then next, second one, that is quadratic polynomial. So quadratic polynomial, same like that, that is quadratic equation. Here we can write the polynomial in the form of x. P of x is equal to ax square plus bx plus c. Ax square plus bx plus c. This is the quadratic polynomial, but most important, that is a is not equal to 0. A is not equal to 0. If a is equal to 0, therefore x square also 0. So it is not quadratic polynomial, it is a linear polynomial. So this is the most important, a is not equal to 0. Okay, next, number third, cubic polynomial. So general syntax of cubic polynomial. So general syntax of cubic polynomial, the highest power of the variable is 3 is called as cubic polynomial. So general syntax here, so P of x is equal to x cube plus bx square plus cx plus d. But a is not equal to 0. But a is not equal to 0. So this is the general syntax of cubic polynomial. Okay, so first one, what is meant by polynomial? Polynomial which contain two words. First one poly and second one nomial. So poly means many and nomial means terms. Okay, this is the general syntax of polynomial. We can mention like that polynomial. So P of x is equal to a1 x raised to n plus a2 x raised to n minus 1, a3 x raised to n minus 2 plus up to dash a n.
Then types of polynomial. So first one, that is linear polynomial. Linear polynomial means the power of the variable is 1. It is called as linear polynomial. Second one, those polynomial which have the power 2 is called as quadratic polynomial. Then third one, the power of the polynomial is 3 is called as cubic polynomial. This is the general syntax of cubic polynomial. Okay, so this is the types of polynomial. Okay, so we can see next concept, that is zero of polynomial. Zero of polynomial. Zero of polynomial. Yes, next concept. Here we can write zero of polynomial. Zero of polynomial. Okay, so zero of polynomial means here we can take polynomial p of x. Polynomial p of x is equal to ax plus b. Is equal to ax plus b. And again here we can write, that is p of x is equal to 0, means if p of x is equal to 0, therefore this polynomial is a zero of polynomial. Simple example, here we can take example like that, that is p of x is equal to, that is 3 by 2x minus 3 by 2x minus 3. 3 by 2x minus 3. Okay, so to find out the zero of this polynomial, how to find? Yes, here we can put x is equal to 2. If you can put x is equal to 2, so we get here p of 2 is equal to 3 by 2 into 2 minus 3. So 2 to get cancel. So we get here p of 2 is equal to 3 minus 3. So p of 2 is equal to 0. P of 2 is equal to 0. So p of 2 is a zero of polynomial, or x is equal to 2 is the zero of polynomial of the given polynomial. Okay. Next, if we can consider here p of x is equal to 0, how to find out the value of variable by using zero of polynomial. Okay, so here we can consider p of x is equal to ax plus b, and if p of x is equal to 0, here we can write p of x is equal to ax plus b, and given that is p of x is equal to 0, if p of x is equal to 0, then if p of x is equal to 0, so directly we can put this one value here. So we get here ax plus b is equal to 0. Then to find out the value of x by using this zero of polynomial, so here we can write like that, that is ax plus b, it get minus b, then x is equal to minus b by a. X is equal to minus b by a. This is the zero of polynomial, or zero value of this polynomial. Okay, so this is most important concept, zero of polynomial. Okay, similarly in quadratic polynomial also we can find the value of x. In cubic polynomial also we can find the value of x by using zero of polynomial. Okay, also we can mention some graphs like that. Here this is the ax plus b, this is the equation of line. Here we can simply mention diagram. This is axis, and here we can draw one line here, and the given line in the form of p of x, okay. Then to find out the zero of polynomial here, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे कि लाइन का इक्वेशन आपको p ऑफ x में दिया है, लाइन का इक्वेशन किस में दिया है? p ऑफ x में। तो p ऑफ x में दिया है, तो ये लाइन x एक्सिस पे कहाँ टच होती है? ये लाइन x एक्सिस पे कहाँ टच होती है? तो वो पॉइंट क्या रहता है उसका? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या रहेगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल क्या है? जनरल फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लिया तो हमें क्या मिलेगा? पैराबोला मिलेगा। ओके, तो पैराबोला इस तरह से रह सकता है, कैसे भी रह सकता है पैराबोला। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कर्व। सो फाइंड आउट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस कर्व। सो हाउ टू फाइंड?
तो यहाँ पे एक पॉइंट टच हुआ है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एक पॉइंट टच हुआ है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं यहाँ पे? 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। क्यों 2 है? क्योंकि 2 पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पे टच है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मींस जियोमेट्रिकली हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम थ्योरेटिकल या मैथमेटिकली हम देखें कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहता है, जिसका वैल्यू जीरो रहता है, मींस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बट जियोमेट्रिकली वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना? ओके, सो कंसिडर वी कैन टेक पॉलिनोमियल दैट इज y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ओके, एक ग्राफ निकालेंगे, एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स फॉर्म में है। इस तरह से आपका एक्सिस आएगा, इस तरह से एक कर्व मिल रहा है। ओके, तो ये जो कर्व है इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स है। तो इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालना, या इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और हाउ मेनी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हियर? सो फर्स्ट वन, जितने पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे कर्व टच होने के बाद मिलेंगे तो वो क्या है, उसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मींस कितने पॉइंट है कि वो एक्स एक्सिस को टच होते हैं। यहाँ पे एक हो रहा है, 1 2 3 4, कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअली सर यही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्यों है, इसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्यों बोलना? ओके, बट वी नो दैट मैथमेटिकली वी कैन राइट हियर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लाइक दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि हम इसको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। कब? जब इसका वैल्यू जीरो आएगा। तो हम इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो ऑटोमेटिकली पी ऑफ एक्स आपका क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो पी ऑफ एक्स जीरो मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब देखो, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपका वाई का वैल्यू जीरो है, यहाँ पे आपका वाई का वैल्यू जीरो है। कैसे y का वैल्यू जीरो है? क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, जस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हुआ है, तो y का वैल्यू यहाँ पे जीरो है। जब y का वैल्यू जीरो मिलेगा तो आपका कर्व क्या है? y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, तो ऑटोमेटिकली आपको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो वैल्यू मिलेगा। ऑटोमेटिकली आपको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? जीरो। इसलिए हम ये पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? जो भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये पहला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये सेकंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज थर्ड एंड दिस वन फोर्थ। ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे कि ये हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम निकालता हूँ। इस तरह से ये आपका एक्सिस है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल चेंज करता हूँ। ओके, यहाँ पे इस टाइप का मैं डायग्राम निकालता हूँ, पैराबोला टाइप का डायग्राम निकालता हूँ। ओके, और ये पैराबोला का डायग्राम या कर्व हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है और ये कर्व इस टाइप का है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ओके, तो y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2 है। एक्स एक्सिस को कितना टच हो रहा है? 2, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? 2 है। बट यही इक्वेशन हम इस तरह से चेंज किए, समझो x इज इक्वल टू पी ऑफ y। ओके, x इज इक्वल टू पी ऑफ y, तो ऑटोमेटिकली कर्व भी आपका क्या होगा? चेंज होगा। बट यहाँ पे x इज इक्वल टू पी ऑफ y है, तो आपको किसके लिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है? y पॉइंट पे निकालना है। ओके, तो y पॉइंट पे यहाँ पे आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा। तो इसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू आपको जीरो मिलेगा। x का वैल्यू क्या मिलेगा? जीरो। और इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू पी ऑफ y, तो ऑटोमेटिकली ये जो x है तो वो क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा। बट कब? जब आपका इक्वेशन x इज इक्वल टू पी ऑफ y है, तब आपको ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा। बट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ x, so we get here 1 2, that is 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, इस तरह से आपको ये 2 मिलेंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू पी ऑफ y है तो ओनली 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा। ओके, तो इस तरह से कंसेप्ट है। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। जैसे कि टाइप्स देखे आपने, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल है। बट कौन से ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल नहीं है? कौन सा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल नहीं है? सिंपली
यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2x माइनस 3। एक एग्जांपल लिया। ओके, p ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2x माइनस 3। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा। Here we can write x raised to 1 by 2. Yes, we know that value of square root, that is raised to 1 by 2 plus 2x minus 3. Okay. अब इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे या नहीं, या ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं। ओके, कैसे चेक करना है, ध्यान में रखना है, जब आपका पावर होल नंबर है, जब आपका पावर होल नंबर है तभी हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जब आपका पावर होल नंबर है तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। बट ये जो रेस टू 1 by 2 है, ये क्या है, आपका फ्रैक्शनल पावर है। ओके, तो ये हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट या क्यूब रूट एक्स प्लस 3। ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि उसका पावर क्या है, रेस टू 1 by 3 है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स रेस टू 1 by 3 प्लस 3। जिस वेरिएबल का पावर फ्रैक्शनल है उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। और एक एग्जांपल आ सकता है, जैसे कि p ऑफ x इज इक्वल टू 1 by x माइनस 2, 1 by x माइनस 2। अब ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं वो चेक करना है। ओके, आपको क्या बोला है, जो वेरिएबल का पावर होल नंबर है उसको ही हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बाकी को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। अब 1 by x माइनस 2 ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं चेक करेंगे। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। हियर वी कैन राइट 1 by x रेस टू 1 माइनस 2, ये पावर ऊपर लेंगे, सो x रेस टू माइनस 1 माइनस 2। ओके, तो ये एग्जांपल सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल रहा है, x रेस टू माइनस 1 माइनस 2। तो ये जो पावर है ये होल नंबर है क्या, इट इज नॉट होल नंबर। ओके, सो देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो इस तरह से पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। मींस आपका x भी रेसिप्रोकल में आ गया या फ्रैक्शनल में आ गया तो वो आप उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। तो इस टाइप के एग्जांपल आपके पॉलिनोमियल नहीं है। जब x का पावर होल नंबर है तो ही हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आपका कंसेप्ट है। ओके, तो हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। 2.1 में कुछ ग्राफ्स है, उसके हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज क्वेश्चन, the graph of y is equal to p of x are given in figure below for some polynomials p of x. Find the number of zeros of p of x in each case. So the graph of y is equal to p of x. Equation क्या दिया आपको, y is equal to p of x फॉर्म में दिया है। तो y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स फॉर्म में दिया है, तो हमें क्या निकालना है, जैसे कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स टच होता है वो आपका क्या रहेगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे x इज इक्वल टू पी ऑफ y रहता तो हम क्या चेक करते थे, y पॉइंट से वो कितने बार टच होता है। ओके, बट यहाँ पे क्या दिया है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स दिया है, तो उसका मीनिंग क्या है कि वो एक्स एक्सिस को कितने बार टच होता है। ओके, तो 1 by 1 हमें आंसर निकालना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल का ग्राफ दिख रहा है आपको, ये आपका एक्सिस है और ये एक्स डैश। ओके, एक लाइन दिया है, आपको फाइंड आउट करना है उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स कितने बार एक्स एक्सिस को टच हो रहा है वो आपको निकालना है। यहाँ पे दिख रहा है ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं हो रहा है, y पे टच हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कितना मिलेगा, हियर वी कैन राइट नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हियर जीरो। ओके, एक भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच नहीं हुआ है। ओके, सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना मिला, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। ओके, सेकेंड एग्जांपल में आपको देखना है, ये सेकेंड ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है, आपको निकालना है y इज इक्वल टू p ऑफ x के लिए निकालना है। y इज इक्वल टू p ऑफ x मींस x एक्सिस के कितने बार टच हुआ है,
तो ओनली वन पॉइंट दिख रहा है आपको कि जो कि एक्स एक्सिस पे टच हुआ है, तो यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना मिलेगा आपको 1. सो हियर वी कैन राइट नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल is equal to 1 ओके. थर्ड नंबर आपको दिख रहा है एग्जांपल. थर्ड नंबर के कर्व में ये कर्व एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट पे वो टच कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो कितने बार टच कर रहा है वो 3 टाइम्स टच कर रहा है. कितने बार 3 टाइम्स. ओके. सो हियर वी कैन राइट नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3. कितने जीरो मिलेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितने जीरो मिलेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 जीरोस मिलेंगे. ओके. नंबर 4 आपको ग्राफ दिख रहा है. नंबर 4 में ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है. ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है. ओके. तो नंबर ऑफ जीरो कितना मिल रहा है, नंबर ऑफ जीरो 2. सो हियर वी कैन राइट नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2. ओके. चाहे वो ग्राफ निगेटिव क्वाड्रेंट में या निगेटिव एक्सिस पे टच करे या पॉजिटिव, बट वो क्या करना है, एक्स एक्सिस को टच करना है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स. देन सेकेंड आपको ये ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे एक टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे एक कर रहा है, यहाँ पे एक कर रहा है. ओके. तो कितने टाइम्स कर रहा है वो 4 टाइम्स कर रहा है. ओके. तो नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल here we can write number of zero of polynomial is equal to 4. So last example, ये भी ग्राफ आपको दिख रहा है, कितने बार टच कर रहा है वो 1, then this one 2 and this one 3. ओके. कितने टाइम्स टच कर रहा है वो 3 टाइम्स. तो इसका आंसर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, या ग्राफिकली हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स. आपका इक्वेशन कौन से फॉर्म में दिया है उसके हिसाब से आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएगा. ओके. तो ये आपका क्या था, एक्सरसाइज नंबर 2.1. ओके. तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, उसमें सब 6 क्वेश्चन है, सब 6 ग्राफ है. तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे फिनिश होता है. ओके. तो हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, जैसे कि पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकालना, ओके, या रूट्स निकालना, ये हमें देखना है. तो 1 by 1 पहले वो प्रूफ देखेंगे, थ्योरेटिकल प्रूफ देखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ओके. फर्स्ट वन, वी नो दैट the linear polynomial, that is p of x is equal to ax plus b. Okay. If this is a zero of polynomial, so directly we can write here that is ax plus b is equal to 0. Then we get here that is ax is equal to minus b, then x is equal to minus b by a. Okay. ये क्या है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. बट ये जो आपको दिख रहा है माइनस बी या बी ए, ये क्या है, ये आपका x का कोएफिशिएंट है. तो सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b इज दी कांस्टेंट टर्म. ओके. यहाँ पे b आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म एंड a क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x. इस तरह से हम लिख सकते हैं, b आपका कांस्टेंट टर्म है, a आपका x का कोएफिशिएंट है. ओके. ये हो गया लीनियर के बारे में. बट हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, हियर वी कैन टेक p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे तो उसका हमें जीरोज निकालना है. तो वो कैसे निकालेंगे. ओके. तो हम थोड़ा सा कंसिडरेशन करेंगे.
We know that quadratic equation which have two roots. So consider first root here, that is x is equal to alpha, okay, and second root here, that is x is equal to beta. इस तरह से हम कंसीडर करेंगे. तो पहला रूट क्या है आपका अल्फा है एंड दूसरा रूट क्या है बीटा है. कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चन आया होगा सर अल्फा ही क्यों लिया बीटा ही क्यों लिया. अदर वेरिएबल आपने लिया तो भी चल सकता है. यहाँ पे अल्फा की जगह पे दूसरा लो, बीटा की जगह पे दूसरा लो, ओके, नो प्रॉब्लम. तो ये क्या है हमारा फर्स्ट रूट है x इज इक्वल टू अल्फा एंड दिस इज सेकेंड रूट x इज इक्वल टू बीटा. ओके, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं. हियर वी कैन राइट दैट इज p ऑफ x. पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू दैट इज k इंटू यस x इज इक्वल टू अल्फा है तो हम इसको कैसे लिखते हैं x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और हियर x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस है तो माइनस होगा. तो p of x is equal to k in bracket that is x minus alpha and second that is x minus beta. सेकेंड रूट क्या मिलेगा x minus beta. ओके, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है एंड व्हाट इज k? k is constant. k is constant. k is constant. ओके, अब सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा. सो p of x is equal to फर्स्ट k as it is इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे x into x square, then x into minus beta, here minus x beta, then minus alpha into x, that is minus x alpha, and then minus alpha minus beta, that is plus alpha beta. Okay, then finally हम k से मल्टीप्लाई करेंगे. so p of x is equal to kx square minus, ओके, ये पेयर में दिख रहा है आपको माइनस एंड एक्स कॉमन है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं एक्स कॉमन निकालते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं. तो क्या रहेगा यहाँ पे दैट इज अल्फा प्लस बीटा. बीटा प्लस अल्फा मीन्स अल्फा प्लस बीटा और के से मल्टीप्लाई किए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे के मल्टीप्लाई होगा. ओके, सो माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा के प्लस के अल्फा बीटा. ओके, इस तरह से हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा. सो वी नो दैट p of x is equal to here ax square plus bx plus c. ये हमने कंसीडर किया है. सो हियर वी कैन राइट दैट इज ax square plus bx plus c is equal to p of x का वैल्यू ax square plus bx plus c is equal to kx square minus x in bracket alpha plus beta k plus k into alpha beta. ओके, इस तरह से आपको एक्सप्रेशन मिलेगा. तो हमने कंपेयर किया तो हमें आंसर मिल सकता है. यस, यहाँ पे कंपैरिजन किया ये टर्म और ये टर्म कंपैरिजन किया तो a का वैल्यू हमें क्या मिलेगा k. ओके, a इज इक्वल टू k. देन ये टर्म x कोएफिशिएंट वाला टर्म यहाँ पे कंपेयर किया तो हमें b का वैल्यू यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो क्या मिलेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा के एंड c का वैल्यू निकालना है तो कंपेयर किया तो क्या मिलेगा c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा. ओके, तो ये तो मिला हमें a b c का वैल्यू ये एक्सप्रेशन से. ओके, तो हमें क्या निकालना है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. क्या निकालना है फाइनल हमें सम ऑफ रूट्स, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछते तो फाइंड आउट द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, तो सम ऑफ रूट्स कैसे बोलेंगे. दिस इज अवर फर्स्ट रूट, दिस इज अवर सेकंड रूट. So here we can write alpha plus beta means that is the sum of roots. Alpha plus beta that is the sum of roots. तो alpha plus beta का आपको वैल्यू निकालना है. ओके, तो alpha plus beta का वैल्यू निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है तो इसमें से ही हमने alpha plus beta निकाले तो हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल सकता है. तो यही एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिखता हूँ. यस, दिस इज माइनस अल्फा प्लस बीटा के. तो हम क्या करेंगे k एंड माइनस साइन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यस k एंड माइनस साइन ट्रांसफर किया तो क्या मिलेगा b अपॉन माइनस k. बट व्हाट इज k वैल्यू हियर a, so directly we can put here a. So we get alpha plus beta is equal to minus b by a. Alpha plus beta is equal to minus b by a. तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा आपको माइनस बी बाय ए.
b by a. Okay, and what is b? B is the coefficient of x, and what is a? A is the coefficient of x square. Okay, so here we can write like that, that is minus coefficient of x upon second coefficient of x square. ओके, तो ये किसका कोएफिशिएंट है? बी एक्स का कोएफिशिएंट है और ए किसका कोएफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिला है सी इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, यहाँ से हम इजीली प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर दैट इज सी इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। ओके, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है, तो के क्या करना आपको? ट्रांसफर करना। सो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय के। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय के, बट वी नो दैट के इज इक्वल टू ए, so directly we can write here that is alpha beta is equal to c by a. Alpha beta is equal to c by a. So finally we can write here alpha beta is equal to what is c? C is the constant term of this quadratic polynomial. So here we can write this is constant term upon next a is the coefficient of x square. A is the coefficient of x square. ओके, तो इस तरह से भी हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ओके, सो सम ऑफ रूट्स हियर माइनस बी बाय ए मींस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड हियर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हियर c by a मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बोल सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा एक्सरसाइज इसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो इस तरह से ये इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके बेसिस हम कुछ एग्जांपल्स 2.2 एक्सरसाइज, इसके बेसिस हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। ओके।